So let's start with this exercise 6.3. Look at this question number 1 here. State which pair of the triangle in figure are similar. Figures are given. Which pair is similar and which pair is not similar. Write the similarity criteria used by you for answering the questions, and also write the pair of similar triangles in symbolic form. ठीक है? Now look at this figure here. Is this triangle ABC similar to triangle PQR? Yes, sir. Yes, this triangle ABC is similar to triangle P. Okay, so similarity, we will write the similarity. The first part is yes, they are similar. The first part of question is they are similar. Right. Second thing, write the similarity criteria used for you answering the question. What is the similarity criteria? That is A similarity criteria, or we can say that A similarity criteria. तीनों एंगल इक्वल है, so that similarity criteria we used here to say that they are similar, right? Now what is the third thing they ask in the question is also write the pair of similar triangles. तो पहले मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता करना चाहूंगा. ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है यहाँ पे? ओके, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? 60. Which angle is 60? Angle P. Yes, angle P. Angle B के corresponding, which angle is corresponding to angle B? Angle Q. Angle Q. And which angle is corresponding to angle C? Angle R. Angle R. Okay. तो अब हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया अगर लिखना है, इसको मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू. ध्यान से लिखना है, ए के करस्पॉन्डिंग P, ए की जगह पे P, B के करस्पॉन्डिंग Q और C के करस्पॉन्डिंग R. So ABC is similar to PQR. So this is the symbolic representation. This is the symbolic form, right? I hope this question is clear to you. And if I write like this, ABC is similar to triangle QRP. If I write like this, correspondence को ना देखते हुए मैं कुछ भी लिख दूं ट्रायंगल को, then it become wrong, right? So you have to write in the symbolic form according to their correspondence. Now look at the second part here. Is these two triangles are similar? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, they are similar. What is the similarity criteria here? SSS similarity criteria. SSS. Yes. SSS similarity criteria. Okay. So SSS similarity criteria, it's like this. If you find the यहाँ पे साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, साइड्स के रेशियो सेम आते हैं, राइट? तो AB का रेशियो होगा बाय विच साइड? AB is corresponding to which side? QR. Okay, AB is corresponding to QR. And what is this? It's 2/4. It's 1/2. Okay. And BC is corresponding to which side? PR. BC is corresponding to PR. Okay, PR. So it's 2.5/5 comes out to be 1/2. Okay. And CA is corresponding to which side? PQ. Okay. So CA upon PQ is 3/6 is equal to 1/2. तो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, तीनों साइड्स का. So it means these two triangles are similar by SSS. अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना चाहूंगा यहाँ पे, AB, BC और CA. इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? AB के करस्पॉन्डिंग विच साइड इज करस्पॉन्डिंग टू AB? QR. AB के करस्पॉन्डिंग है QR. ओके. RQ क्यों नहीं है? मैं RQ भी तो लिख सकता हूं. मुझे कैसे पता लगेगा कि A से B पे जा रहा हूं तो मुझे Q से R पे जाना है? R से Q पे भी तो आ सकता हूं. हाउ टू चेक दिस थिंग?
इफ यू लुक एट दिस, ए से जब आप आ रहे हैं, एक साइड इधर 2 जा रही है, एक साइड इधर 3 जा रही है, तो जब आप Q से आप स्टार्ट करेंगे तो एक साइड उसका डबल 4 जा रही है, उस 3 का डबल 6 जा रही है, सो वी हैव टू स्टार्ट विद Q फ्रॉम Q, एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम R, अगर आप RQ लिखते हैं, सो व्हाट हैपन, एक 4 जा रही है, 2 का डबल है, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, एंड एक यहां से 5 जा रही है, राइट, 5, तो 3/5 रेशियो 1/2 नहीं आएगा, so we should start from Q, not from R. So like this you can check it, right? Now tell me BC. BC is corresponding to which side? RP. BC है RP के corresponding, चेक कर लेते हैं। B से C पे जा रहे हैं, लेट मी रब दिस थिंग, हम लोग जा रहे हैं B से C पे, B से C पे इधर, तो यहां पे जा रहे हैं 2.5 की तरफ, तो अब ये 2.5 का डबल 5 है, तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं PR लिख लूं इसको, या मैं RP लिख लूं, ठीक है। अब देखो, अगर R से स्टार्ट करता हूं तो 5 की तरफ 2.5 का डबल है, B से अगर मैंने स्टार्ट किया B से C की तरफ, तो अगर मैं R से P की तरफ जाता हूं, RP लेता हूं, और इधर क्या जा रहा है 4, तो क्या इधर 4 का हाफ आ रहा है, डबल है, रेशियो सेम आएगा, यस, रेशियो यहां पे सेम आएगा 2, ठीक है, तो इसलिए RP लेंगे। अगर PR लेते, P से आता 5 तो जाता, इधर 6 जाता, तो 6 में रेशियो कितना आ जाता, 1/3। सो दिस करस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग in this chapter. To write the in symbolic form, you have to write it in the corresponding form. अब मैं यहां से दो साइड्स का पता करके इससे भी बता सकता हूं, अगर ये करस्पॉन्डेंस मैंने सही फाइंड कर लिया, इन दोनों से भी पता लग जाएगा हमें कि ये ट्रायंगल कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग है। देखो, AB की जगह पे क्या रखा, QR, और लास्ट वाला क्या आएगा, C, यहां पे लास्ट में क्या आएगा, P। सो दिस इज द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, वी कैन फाइंड इट फ्रॉम द टू साइड्स। अगर हमें दो साइड, एक साइड इसकी और एक साइड इसकी इक्वल पता है, तो उससे भी हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, RP के इक्वल होगा। अब देखो, B से C RP, B से C RP, राइट, ये बताता हूं अभी। CA देखो, CA किसके करस्पॉन्डिंग होगा, PQ. PQ, यस, राइट। अब अगर आपको एक चीज यहां पे बता दूं मैं, ये हम लोगों ने साइड्स के साइड, अगर हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स पता है, तो उससे सिंबॉलिकली कैसे लिखा हम लोगों ने, ऐसे, ठीक है, दो साइड से मैंने लिख लिया, AB और QR से ही मुझे पता लग गया ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। अगर हमें सिमिलरिटी दे रखा है, ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो ये कैसे लिखेंगे, रिवर्स, ये देखिएगा, पहले दो देखिए, पहले दो हैं AB, A से B, ये पहले दो हैं QR, राइट, AB किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, QR के, ये पहली हो गई। अब देखो लास्ट के टू, B से C पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे R से कहां जा रहे हैं, R to P, तो BC किसके करस्पॉन्डिंग होगा, RP के, तो ये सेकंड वाला, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट और लास्ट, AC किसके करस्पॉन्डिंग होगा, QP, फर्स्ट एंड लास्ट, तो AC इक्वल टू AC होगा किसके करस्पॉन्डिंग, QP के, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं, या उल्टा कर दूं इसको, CA किसके करस्पॉन्डिंग होगा, PQ के, AC करस्पॉन्डिंग टू QP भी लिख सकते हैं, और CA करस्पॉन्डिंग टू PQ भी लिख सकते हैं, राइट, इसको अगर रिवर्स कर दें। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, look at this third part and check it, is it similar, is these two triangles are similar or not? No, sir. No, they are not similar. Why? अगर आप यहां पे देखेंगे, 2 का रेशियो करा 4 से, तो आ गया 2/4, आया 1/2। अब आपने रेशियो किया, 3 का रेशियो कर दिया 6 से, साइड्स का रेशियो तो चेक करना है, जब साइड्स गिवन है तो साइड्स का रेशियो, एंगल गिवन है तो एंगल चेक करना है, 1/2। लेकिन अगर थर्ड साइड का रेशियो बनाओगे 2.7 का 5 से, तो 2.7 का 5 से जब रेशियो बनाओगे, तो ये 1/2 के इक्वल नहीं आएगा, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। अब ये रेशियो किसी का किसी से भी बना सकते हैं, इसके जैसे 2 का मैंने 4 से पेयर बनाया, जरूरी नहीं है 4 से ही बनाना है, 2 का 6 से बना लो आप, लेकिन रेशियो सेम आना चाहिए, रेशियो सेम नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट सिमिलर। तो नॉट सिमिलर में सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताने की भी जरूरत नहीं है, और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। लुक एट दिस फोर्थ वन, इज दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? Yes, sir. Okay, yes, absolutely right.
यस, दे आर सिमिलर, ये सिमिलर Yes, हैं। sir. ओके, किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं बता सकते हैं? SAS2. एस ए एस, सास, सास, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। गुड। नाउ वी नीड टू राइट द करस्पोंडेंस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अब करस्पोंडेंस देखते हैं। एंड इफ यू लुक एट दिस हियर, which ratio mn, if I write mn, so this mn side is corresponding to which side? mn है 2.5, Thank you. ओके, और ये है 5। अब ये pq भी हो सकती है, और ये दो ऑप्शन हो गए। अब mn या तो pq के करस्पॉन्डिंग है, या इसको qp भी लिख सकता हूं, qp। अब कौन सा सही है ये देखना पड़ेगा, या qp है या ये है, विच वन इज करेक्ट। अब ये एस से क्यों हुआ ये भी बता दूं पहले मैं आपको, इसको करस्पोंडेंस बाद में लिखेंगे। एस से देखो, इन साइड्स का रेशियो 2.5 का 5 के साथ, 2.5 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 1/2, और 5 का 10 के साथ 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1/2। तो दो साइड्स का रेशियो, और एक इंक्लूडिंग एंगल, देखो इंक्लूडिंग एंगल है, इंक्लूडिंग एंगल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल, तो साइड, एक ये साइड, फिर एंगल, फिर साइड, तो ये SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। नाउ थिंक अबाउट इट एंड टेल मी, इज MN is corresponding to PQ or QP? QP. QP, yes, QP is the right option, so we have to write QP. Why? Because कैसे पता करा आपने? It's corresponding to QP. कैसे पता किया आपने, इसको बता सकते हैं? How do you find it? Sir, because in SAS the including angle is same, so we have to count the including. Hmm. Sir, we have to start from QT because from point Q only the angle is 70 degree, Yes. which is same. Yes. अब देखो यहाँ पे MN लिख लिया मैंने, M से स्टार्ट किया, N की तरफ गया मैं, M इनिशियल पॉइंट है, N टर्मिनेटिंग पॉइंट है। अब ये साइड है 2.5, तो साइड तो पता लग गई, 5 इसका डबल, यहाँ पे 5 आ रहा है 1/2 रेशियो। अब या P से Q पे जाना है या Q से P पे जाना है। अब देखो M से N पे गए हैं, तो M पे एंगल क्या बन रहा था, 70। अब ये 70 एंगल Q पे बन रहा है या P पे, स्टार्ट 70 एंगल पे वाले से करना है आपको, तो ये 70 एंगल Q पे बन रहा है, इसीलिए हमें Q से स्टार्ट करना है और P पे एंड करना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। एंड सो इसका जो रेशियो आएगा, एंड वन साइड इज, इफ आई राइट LM, LM is corresponding to which side? Think it. RQ. RQ, okay, RQ. yes, RQ। L से M पे जा रहे हैं, 70 डिग्री एंगल की तरफ मूव कर रहे हैं, 5 का डबल 10 यहां पे है, तो हमें QR ऑप्शन है मेरे पास, और RQ भी लिख सकता हूं। अब QR नहीं लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि जब मैं Q से जाऊंगा तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एंगल 70, तो LM से एंगल 70 पे टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहे हैं जाके, तो Q पे हमें रुकना है जाके, ठीक है, तो RQ लेंगे, R से स्टार्ट करेंगे Q। तो दो चीजें हो गई हैं, तो बेसिकली साइड्स का रेशियो सेम आ गया है, और एक एंगल है M। तो अगर आप देखो, मैं यहाँ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कुछ भी लिख सकता हूं मैं, जैसे मैंने लिख लिया MNL इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल। देखो MN किसके करस्पॉन्डिंग है, M से N, MN देखो MN करस्पॉन्डिंग है Q के, QP, तो QP लिख लिया। अब लास्ट वाला आपको खुद से पता ही लग जाएगा, क्या आएगा, QP R, ठीक है। R. ये करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, M की जगह पे तो Q रखना ही है, क्योंकि 70 है, ठीक है। और ये करस्पोंडेंस देख ली, L से M पे जाते हैं तो R से Q पे जाएंगे। यहाँ पे देखो L से M, इधर से लास्ट फर्स्ट, तो यहां से R से Q पे जाएंगे, तो R से यहाँ पे फर्स्ट में आएगा Q, like this we can check the correspondence। I hope this correspondence is clear to you। Now look at this fifth part, is it similar or not?
Yes, sir. No, sir. Yes, sir. And one who is saying no, sir? No, sir. Okay, no, sir. Yes, sir. Sir, No, maybe, sir. sir. अब देखिए साइड्स का रेशियो देखिए 2.5 का 5 से कितना आएगा 1/2, 3 का 6 से कितना आएगा 1/2। दो एंगल इक्वल हो रहे हैं और एक दो साइड का रेशियो सेम हो रहा है और एक एंगल इक्वल हो रहा है, तो साथ एंगल रूल लगेगा नहीं लगेगा SAS? No, sir. अरे क्यों नहीं लगेगा, दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है और एंगल सर सेम आ रहा है। सर ABC में 80 उन दोनों के बीच में नहीं है। उन दोनों के बीच में नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो सास रूल नहीं लगेगा यहाँ पे। और ये ट्रायंगल सिमिलर भी नहीं है, नॉट सिमिलर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल जो है दोनों साइड्स के रेशियो के बीच में होना चाहिए। तो जैसे 6 है और ये 5 है, तो एंगल इनके बीच में है, यहाँ पे ठीक था, ठीक है। अब ये 5 2.5 आया, ठीक है। अब ये 6 आया, तो ये जो 80 डिग्री कहां होना चाहिए था, इसको इन दोनों के बीच में यहां पे होना चाहिए था, तब ये इंक्लूडेड एंगल होता और प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई होती, साइड एंगल साइड, और ये ट्रायंगल सिमिलर होते। अब ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हो रहा है साइड साइड एंगल और यहां पे हो रहा है साइड एंगल साइड, गड़बड़ हो रहा है कुछ, ये इसमें इंक्लूडेड एंगल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, it is not similar. I hope this thing is clear to you. Look at this Yes, sixth sir. part. Look at this sixth part. Is it similar? Yes, sir. Think it. Is it similar? Yes, sir. एक एंगल 70 है, Yes, sir. एक एंगल 80 है, एक एंगल 80 है, एक एंगल 30 है, तो ये तो एक ही एंगल इक्वल आ रहा है, तो सिमिलर कैसे हो सकता है? सर एंगल F will be 30. अच्छा, एंगल एफ भी फाइंड कर लिया आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। अच्छा, ये एंगल 30 है, तो फिर एंगल पी कितना आएगा 70. 70। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के थर्ड एंगल का पता कर लिया। अब देखिए, इसलिए सिमिलर हो रहा है, ये 70 70 के इक्वल हो रहा है, 80 80 के इक्वल हो रहा है और 30 30 के इक्वल, तीनों एंगल इक्वल हैं। सो यस, फर्स्ट थिंग इज यस सिमिलर, सेकंड थिंग इज बाय विच प्रॉपर्टी? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंड इफ आई नीड टू राइट द करस्पॉन्डेंस, मैं करस्पॉन्डेंस लिखना चाहूं तो ये मैंने लिख लिया, कुछ भी लिख सकता हूं, इसको लिख लिया EDF। तो EDF किसके सिमिलर होगा? E के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? Q. Q। F के करस्पॉन्डिंग, D के करस्पॉन्डिंग, D के करस्पॉन्डिंग, P. D के करस्पॉन्डिंग P है, ठीक है, और F के करस्पॉन्डिंग है R, ठीक है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, 3 पार्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था ये। सो दिस इज बाय डूइंग दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इससे हम लोगों ने क्या सीखा है इस क्वेश्चन में हमने, कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है उसको करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग सिंबॉलिकली कैसे करेक्ट रिप्रेजेंट करना है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now look at this question number 2. In figure 6.35, ODC is similar to OBA. So let me write the given data here. Triangle ODC similar है triangle OBA के, ठीक है। So कहाँ है ODC? ODC is this and OBA नीचे है, ठीक है। अगर ये एंगल 70 डिग्री है, ठीक है, और ये ट्रायंगल्स कौन सिमिलर हैं, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। O का O के इक्वल होगा, D जो जहां जो एंगल D पे बन रहा है वो एंगल B के इक्वल होगा। सो व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज इक्वल टू 70. 70 डिग्री, राइट। एंड एंगल C जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंड इफ दिस एंगल इज 70, सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज दैट, अब इसका जो ये गिवन है 125 70, ठीक है, ये गिवन चीज हो गई है। एंड फाइंड करना है DOC DCO, ओके। इस ट्रायंगल के दोनों एंगल फाइंड करने हैं, ये वाला एंगल ऊपर वाला और ये वाला, और OAB एंगल फाइंड करना है, OAB दिस एंगल।
राइट। To find angle DOC, DCO and OAB. Now angle OBA is equal to angle ODC is equal to 70. Why? Because triangle ODC is congruent to triangle, similar to triangle OBA के सिमिलर है, तो एंगल 70 डिग्री होगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे 70 लिख लिया, राइट। नाउ आफ्टर दिस वी कैन कंक्लूड दैट दिस एंगल एट O and this angle at O. So what angle? This angle DOC is equal to angle AOB. Why? Again the same reason. These two triangles are congruent. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, सपोज इसको मैंने x ले लिया और सपोज ये एंगल भी x है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए हैं? These two angles are vertical opposite angles. तो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, राइट। सो इस वर्टिकल अपोजिट एंगल होने की वजह से इसका x और y का, तो इसी तरह से ये वाला एंगल ये 125 हो जाएगा, ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। सो नाउ व्हाट इज द सम ऑफ दिस? नाउ व्हाट इज 125 plus x plus 125 is equal to 360? Why? Why? Complete angle. Yes, absolutely right. It's complete angle. तो ये कंप्लीट एंगल से ये 360 डिग्री हो गया। तो यहां से मैं x का पता कर सकता हूं इजिली। अब 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 is equal to 110. So the value of x in this case is 55 degree. So x की वैल्यू 55 डिग्री आ गई है। So now x मैंने लिया किसको था, therefore we can say that angle DOC is equal to angle AOB is equal to 55 डिग्री, right? Now अब अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल DOC ट्रायंगल में, that 70 plus 55 plus DCO is equal to 180. Why? Angle sum property. Yes, angle sum property. Angle sum property of triangle. So यहां से हमें DCO मिल जाएगा 180 minus 70 plus this 125. So it's become 545 degree. Not 45, it's 55. So this angle is 55 degree, and therefore angle what is angle BAO या OAB एंगल क्या होगा? OAB एंगल भी इसी के इक्वल होगा DCO के। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल हैं, तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। सो आई थिंक वी हैव फाइंड आउट द ऑल द एंगल्स। एक हमें DOC फाइंड करना था, DOC हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, DOC इज 55, एंड DCO भी फाइंड करना था, DCO इज 55, and OAB is 55. So all the angles are 55 degree. I hope this question is clear to you all now. Yes. Now let's move to the next question. Look at this question number 3 here. If you read the question here, the diagonal AC and BD of a trapezium parallel this intersect each other at point O using similarity criteria of the two triangles, so that OA upon OB is equal to this. Let me draw the figure for this first. एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं पहले। Figure is not given. So this is the trapezium.
ट्रेपीजियम में हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें जो साइड ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, इसके डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं at point O. So this is point O, diagonal intersect at point O. Now we need to prove here in this question OA upon OC is equal to OB upon OD. We need to prove. Now OA OC कहाँ पे हैं? अगर आप देखेंगे तो OA यहाँ पे है, OC यहाँ पे है, OB यहाँ पे है और OD यहाँ पे है। इनको प्रूव करना है। So if I take these two triangles and this triangle AOB, triangle AOB and triangle COD, और मैं इनको कॉन्ग्रुएंट इनको सिमिलर प्रूव करना चाहता हूं, तो कैसे सिमिलर प्रूव करूं? एक एंगल तो मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये देखो ऊपर वाला ट्रायंगल, और इसको मैं प्रूव करना चाहता हूं सिमिलर। तो मुझे ये एंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD के इक्वल है। वाई? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, राइट? सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू टेक इट हियर इक्वल? Anyone, could you please tell me? AO equal to OC. It's not given in the question. Think it and tell me. OB is equal to OD. No, sides are not given equal. So I have marked AB parallel DC. AB is parallel to DC, but what to do with that? या तो हमें तीनों एंगल देखने हैं या तीन साइड इक्वल करने हैं। Second, यस, सर गिवन में तो AC और BD सेम है ना? AC और second, BD, AC और BD सेम कहाँ है? नहीं, इक्वल नहीं है। Yes, who is going to tell this? sir, since AB is parallel to DC, then angle OCD is equal to angle OAB. Why? Why it is equal? Which Alternate interior angle. Yes, alternate interior angles. I am writing the short form here. You do not use this short form in the exam paper. And अब बिल्कुल सही आपने बताया, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, लाइन पैरेलल हैं। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, राइट? सिमिलरली एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, सेम। तो अब तीनों एंगल इक्वल आ गए हैं ट्रायंगल के, तो मैं क्या बोल सकता हूं? So these two triangles are similar or not? Yes, they are similar. By which rule? By which rule these triangles are similar? A similarity criteria. अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तब भी सिमिलर हो जाता है, थर्ड वन ऑटोमेटिकली इक्वल होता ही है, राइट? So if these two triangles are similar, so I can take the sides ratios. AO upon CO is equal to OB upon OD, ऐसे लिख सकता हूं। And what we need to prove in this question is OA upon OC is equal to OB upon OD. तो AO लिखा मैंने, इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूं, OA, और इसको OC भी लिख सकता हूं, and it's OB and it's OD, right? So hence proved. I hope this thing is clear to you. तो मैंने बस दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे सिमिलर प्रूव किया है, और साइड्स का जो मैंने रेशियो लिया, तो दैट रेशियो वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4 हियर. Figure is given QR upon QS equal to this, angle 1 equal to, so that these two triangles are similar. So what is given in the question is, let me write the given data. It's QR upon QS is equal to QT upon PR, and this is the first thing given, and second thing is given, angle 1 is equal to angle 2. What we need to prove in this question? To prove, so in this question of geometry you need to represent your solution like this that I am writing. पहले जो given है वो लिखना होता है आपको,
दिस इज द प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। फिर आपको जो प्रूव करना है वो लिखना होता है, एंड देन योर सॉल्यूशन इज सेड टू बी हियर प्रूफ, उसको प्रूफ बोलते हैं। अब ये दो ट्रायंगल है पी क्यू एस, इसको हमें करना है टी क्यू आर के, टी क्यू आर, ओके, इनको सिमिलर प्रूव करना है, राइट। एंड angle 1 is given angle 2. So let us take these two triangles in triangle PQS and triangle TQR. So angle 1, angle at Q. So we can say that angle PQS is equal to angle TQR. Why? Is equal to 1. Why? Because this angle is common to both the triangles. So जो angle 1 है वो दोनों triangles में common है, ठीक है। वो दो ट्रायंगल कौन से हैं आप समझ पा रहे हैं? ये टी क्यू एस तो ये बड़े वाला ट्रायंगल है, Yes, यहाँ पे टी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल है, और टी क्यू एस ये छोटा वाला ट्रायंगल है, पी क्यू एस वाला ये वाला ट्रायंगल, ये वाली जो साइड मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। तो एंगल 1 दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दिस गिवन डाटा इज गिवन हियर, बट एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सो व्हाट डज इट मीन? If angle 1 is equal to angle 2, so what does it mean? If you look at the triangle PQR, अगर ट्रायंगल में आप देखेंगे ट्रायंगल PQR में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इट मींस वो ट्रायंगल आइसोलिसिस ट्रायंगल है, तो मैं PQ को किसके इक्वल ले सकता हूं? यस प्लीज लुक एट दिस एंड टेल मी। QR. नो, QR इज नॉट द अपोजिट साइड। 1 के अपोजिट में PR. देखिए, यस इट्स PR, PR. opposite sides, the opposite sides opposite to the equal angle are equal. So ये मैं ले सकता हूं PQ इक्वल टू PR, राइट। इससे अगर आप अब नाउ अगर आप गिवन कंडीशन एक देखेंगे, यहाँ पे एक गिवन कंडीशन है QR अपॉन QS, QT अपॉन PR है। PR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? What I can write at the place of PR? PQ. Yes, I can replace it with PQ. Now if you look at this, now ये जो रेशियो आ रहा है साइड्स का, look at this रेशियो, ये रेशियो आ रहा है QR अपॉन इस ट्रायंगल की QR साइड। लेट मी रब ऑल these things, then it will be clear to you. इस ट्रायंगल की QR साइड और इस ट्रायंगल की QS साइड का रेशियो, और इस ट्रायंगल की QT साइड और इस ट्रायंगल की QP साइड का रेशियो। देख रहे हैं आप, पहले QP की जगह पे क्या लिखा था, यहाँ पे PR लिखा था। PR इस ट्रायंगल की साइड नहीं थी, तो मैंने PR को किसके इक्वल ले लिया? QP के, और PR को किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे? QP से। अब आप देखिए ये ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम आ गया है और ये इंक्लूडेड एंगल सेम आ गया है। सो बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन से दैट these two triangles are congruent? SS. Yes, by SAS. So triangle TQR by SAS similarity criteria. सो यहाँ पे साइड्स का रेशियो सेम लाना होता है सिमिलरिटी में, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखेंगे साइड्स का रेशियो सेम आ गया है दो साइड्स का, और एक एंगल इक्वल आ गया है, तो दो साइड एंगल साइड। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सर एंगल क्यू भी दोनों में कॉमन आ रहा है ना? हाँ, एंगल क्यू Angle दोनों में Q कॉमन आ रहा है, यस। सो दैट इज द इंक्लूडेड एंगल, right? I hope this question is clear to you all. Now let's move to the next question. Look at this question number 5. Figure is not given in this question also. S and T are the point on the side PR and QR of a triangle PQR such that angle P is this, so that this. So इसकी फिगर हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं, तो पहले ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। सपोज दिस इज द ट्रायंगल PQR। PQR, ओके। S and T are points on side PR। S एक पॉइंट है PR के ऊपर, सपोज यहां पे ले लिया, और एक T पॉइंट है इसके ऊपर, सपोज यहां पे ले लिया। ये सॉरी PR के ऊपर, ये QR के ऊपर है, इट्स नॉट ऑन दिस, इट्स हियर, ओके। नाउ दिस T point is on QR
ओके, एंड एंगल P इक्वल टू RTS। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं इस साइड को, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब RTS एंगल कहां पे है? RTS एंगल यहां पे है, इसको मान लिया x, ठीक है, और ये P के इक्वल है, तो P यहां पे है, इसको मान लिया x, राइट। सो अब हमें प्रूव क्या करना है? RPQ। RPQ कहां पे है? बड़ा ट्रायंगल RPQ है, और RTS छोटा ट्रायंगल है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। सो गिवन आप लिखेंगे, टू प्रूव आप लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम जस्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रूफ, ठीक है। तो मैं दोनों ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। सो इसमें RPQ में और RTS में अगर मैं एंगल R को एंगल TRS को TRS नहीं, बड़ा एंगल लिखता हूं पहले, एंगल PRQ को अगर मैं STRS के इक्वल लिख लूं तो रीजन क्या होगा? एनीवन? कॉमन एंगल। यस, एब्सोल्युटली राइट, इट्स कॉमन एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, राइट। अगर मैं इस एंगल को एंगल P को अगर मैं एंगल RTS के इक्वल लिख लूं, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? Given. Yes, absolutely right, it's given. Now what is the third thing I need to find here to prove these two triangles congruent? क्या फाइंड करूं? तीसरी चीज बता सकते हैं मुझे? Think it. What is the third thing I need to find here to prove it similar? Angle R is common. Angle R we have already taken as common. So is anything is required more? Third thing is required if two angles are same? नो सर। No, that is the angle similarity criteria. अगर आपने दो एंगल सेम कर दिए तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम आएगा ट्रायंगल्स का। और हमने ये भी देखा है कि एंगल क्राइटेरिया लिखें या एंगल, अगर आपने दो एंगल सिमिलर प्रूव कर दिए हैं, सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now let's move to the next question. Look at this question number 6 here. Figure is given. Okay, figure नहीं बनानी पड़ेगी हमें। Triangles congruent हैं. Let me write the given data. This is triangle ABE is congruent. ये congruent का साइन है, और अगर इक्वल टू का साइन इसके नीचे से निकाल लें तो किसका साइन बन जाता है? सिमिलर का साइन बन जाता है, राइट। इट इज लाइक अ स्नेक इज स्लीपिंग ऑन इक्वल टू साइन। और अगर इक्वल टू साइन हटा दें, इसका स्नेक का बेड निकाल लें इसके नीचे से, तो ये सिमिलर बन जाता है, सिमिलर का साइन। समझ पा रहे होंगे आप? ये मैं यहां से लिख के दोबारा बताता हूं आपको। ADE को प्रूव करना है सिमिलर। सिमिलर ये ऐसे है जैसे इक्वल टू इसका बेड है और एक सांप इसके ऊपर सो रहा है, स्नेक। अगर इसका बेड में चुपके से निकाल के ले आऊं तो ये स्नेक रह जाएगा यहाँ पे। तो ये जो ऊपर वाला साइन है, ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, और ये सिंबल होता है सिमिलरिटी का, राइट। अब वो गिवन है और ये प्रूव करना है। अब कहां है ये ट्रायंगल देखते हैं जो हमें प्रूव करना है। ADE ये है जी, ऊपर यहां पे है ADE, ठीक है। इसको ABC के करना है। ABC कहां है? ABC ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये ABC पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दी, दोनों में एंगल A कॉमन लग रहा है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो प्रूफ में मैं लिखता हूं जो मुझे प्रूफ करना है, तो वो ट्रायंगल ले लेता हूं, दोनों जो इक्वल हमें कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव करने हैं। तो मैं ले लेता हूं ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इसमें एंगल A को एंगल A के इक्वल लिख सकता हूं, या इसको ऐसे लिखूं कि DAE इज इक्वल टू BAC, राइट। वाई? इट इज कॉमन, ठीक है, एक चीज कॉमन आ गई है। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग? think about the second thing in this case. So ये यूज करना पड़ेगा गिवन कंडीशन। So think about this given condition. ये गिवन कंडीशन है ABE। कहां है ABE? ABE ये वाला ट्रायंगल है, देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल।
और ये ट्रायंगल किसके इक्वल है, ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें इससे क्या पता लगा हमें, ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, ए किसके इक्वल होगा, एडी। ए डी के। लक्ष्य जी भी आ गए हैं, लक्ष्य खारिनी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। काफी लेट हो गए आज, किसी जरूरी काम से गए होंगे कहीं पे। याद दिलाना, अटेंडेंस मार्क करूंगा आप लोगों के जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। ए बी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के, और ए इक्वल आ रहा है ए डी के, ए डी के इक्वल आ रहा है, ए डी के इक्वल आ रहा है, ओके। और बी किसके इक्वल आ रहा है, सी डी के। तो क्या कोई फायदा हो रहा है जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं इनमें और इसमें? सोचो, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। सर कैन यू रिपीट? सो एक एंगल हमने इसको प्रूव कर लिया है, एडी का, एबीसी का एक एंगल कॉमन आ रहा है इन ट्रायंगल्स में जो प्रूव करने हैं। ये गिवन डाटा है, इसका मतलब है अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अब मुझे ये करना है, अब इसको मुझे सेकंड थिंग यहाँ पे ढूंढनी है। तीन चीजें ढूंढनी होती हैं, दो एंगल भी ढूंढ लेते हैं तो उससे भी काम हो जाता है। अब इनको सिमिलर करने के लिए क्या करूं, इस गिवन डाटा को कैसे यूज करूं मैं? सर कैन आई टेल? यस, सर साइड्स आर इन Sir. सेम रेशियो। अच्छा, हाँ, ये कौन बताना चाहिए, किसने बताया है साइड्स आर इन द सेम रेशियो? दीपांशु। दीपांशु ने। अच्छा, और कौन बताना चाह रहे हैं? Sir, AD upon AD is equals to AE upon AC. Okay, just wait, let me write what are you saying. You are saying that AB upon AC and AE upon AD. No, sir. AD upon AB is equal to AE upon AC. You are saying that AB upon AD is equal to AC upon AE. Okay, why? सर साइड सेम है तो इनका रेशियो 1/1 आ जाएगा। साइड सेम है तो रेशियो 1/1 आ जाएगा। अच्छा, तो AB के नीचे AD और AC के नीचे AE। सर AB के नीचे AC लिखना है। AB के नीचे मुझे AC लिखना चाहिए। ओके, ए ऊपर होगा, ए ऊपर होगा, ये नीचे होगा। ओके, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यू गॉट द पॉइंट। लेट मी एक्सप्लेन दिस एंड लेट मी रब दिस थिंग एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सो लुक एट दिस फर्स्ट वन। अगर ये साइड है तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 आई कैन राइट लाइक दिस, AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ लुक एट दिस सेकंड थिंग, दिस वन। सो इसको अगर मैं AE को नीचे ले जाऊं इस साइड में, so I can write that like this, AD upon AE is equal to 1 or not? Yes, I can write. इनको मैं यूज करके ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं AE को नीचे ले जाऊं तो 1 के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, राइट? लुक एट दिस इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, if both the things are equal to 1, so I can write like this, AB upon AC is equal to AD upon AE, right? Or if I rearrange the terms, if I shift this AD on this side and AC on this side, so I can write like this, AB upon AD is equal to AC upon AE, ऐसे लिख सकता हूं मैं, right? And if you look at the figure now, अब आपको समझ में आया होगा। अगर आप फिगर देखेंगे, इन द फिगर अगर मैंने ऐसे लिखा AB अपॉन AD, तो बड़ा ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटा ट्रायंगल की साइड, एंड AC अपॉन AE बड़ा ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटा ट्रायंगल की साइड। तो साइड कैसी हो गई, साइड सेम रेशियो में हो गई। और ये A एंगल कैसा है, इंक्लूडेड एंगल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई यहाँ पे,
SAS. SAS. So we can say that triangle ADE is similar to triangle ABC by SAS similarity criteria. I hope this question is clear to you all. Any doubt? Any question? No, sir. Okay. सो द मेन थिंग इज एक एंगल ए कॉमन था और एक हमने साइड्स का रेशियो बनाया है यहाँ पे, ठीक है। इक्वालिटी नहीं लेते हम लोग उसमें, हम लोग इक्वालिटी नहीं लेते हैं सिमिलरिटी में, इसलिए मैंने यहाँ पे रेशियो बनाया। तो आपको कैसे पता लगेगा रेशियो बनाना है? क्योंकि हमें सिमिलर करने के लिए रेशियो ही करना होता है, राइट। सो लाइक दिस, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन 7 हियर। In figure 6.38, okay, figure is given. Altitude AD and CE, okay, ABC intersect each other at P. तो एक ट्रायंगल है ABC और ये AD और CE यहाँ पे एल्टीट्यूड है जो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैं डायरेक्ट प्रूव कर रहा हूं, प्रूफ लिख रहा हूं मैं फर्स्ट का। आई एम नॉट राइटिंग द गिवन डाटा, यू राइट इट बाय योरसेल्फ। तो AEP ट्रायंगल कहां है? अब इन ट्रायंगल्स ले लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। कहां है ये ट्रायंगल AEP? Sir, each one 90 और degree. P। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी हाईलाइट दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मैंने हाईलाइट कर दिया। ये ट्रायंगल है A जो हमें करना है ये, और एक ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे CPD इसके ऊपर। सो यस, व्हाट आर यू सेइंग? Sir, it is on 90 degree. Yes, you want to say that angle AEP and angle CDP is equal to 90. Yes, absolutely right. Now the second thing. Sir, angle AP is equals to angle CPD. Yes, absolutely right. What is the reason? Vertically Vertical opposite. Yes, vertically Vertically opposite opposite. angles, right. So we can say that these two triangles are similar by which property? AA. Yes, AA. AA से ये similar हो गए हैं, right? By angle similarity criteria. Okay, so now look at this triangle ABD and CBE. AB कहां पे है? ट्रायंगल ABE, लेट मी मार्क दिस ABE यहां पे है, और ABE नहीं ABD, ये ट्रायंगल है ABD, राइट। और CB कहां पे? CBE। सो व्हाट इज द वन एंगल 90 है इसमें? Yes, sir. व्हाट इज द सेकंड एंगल इन दिस टू ट्रायंगल्स? Angle B. Angle B, yes, absolutely right. Why? What is the reason? Common angle. Common angle. So I am not Common going to angle. write it. I hope this is clear to you. Now look at this third one. AEP and ADB. Let me write the triangles. कहाँ पे है AEP triangle? AEP triangle is this, and ADB is triangle is this. So what is the reason? One angle 90, right? What is the second angle? Angle A. Angle A. Why? What is the reason for this? Common angle. कॉमन एंगल। तो एक कॉमन आ रहा है, एक 90 आ रहा है हर एक ट्रायंगल में। इसमें देखो PDC and BEC. Where is PDC? Triangle PDC. Let me highlight this. PDC. This is the PDC. And where is BEC? So same thing. Yes. What is the first angle? Sir, angle 90. Angle 90. What is the second angle? Angle Sir, C. Angle C is common. Common. I hope this question is clear to you. So I am not going to write this second, third, fourth part. You can write it by yourself. So